Hi students, so I'm Pradeep Garg, your master teacher in physics. In this session, we are going to talk about some amazing shortcuts to finding of commonly known bodies, which you would have done with the help of integration. So I am going to discuss some unique methods using which you can avoid integration, right? After that, I'm going to tell you an amazing concept which I'm quite sure that you would have never heard about, and then using those concepts, I'm going to discuss one problems, and I'm also going to leave one teaser problem that can be solved using that concept. um, but if you do not know that concept, then you would eventually you would be required to use integration. So this is going to be an amazing session in which we will learn about some amazing techniques for bypassing integration and use solving the problem in an elegant manner. And I will be bringing more such videos in the coming weeks. So let's start without wasting much time. So basically, you can see on your screen that there are that यहाँ पे three bodies हैं. There are the three bodies. First is uniform disk, semi disk rather, half disk. Second is uniform hollow cone, and third is uniform solid sphere. So let's see. I'm sure you all of you know that कि इनका center of mass कहाँ पे होता है. But again, you would have solved those questions with the help of integration. ठीक है? Now I am going to discuss the methods by which we can avoid integration in particularly these bodies. Okay, so let's see how we could have avoided integration. तो सबसे पहले मैं part A लेता हूँ. Uniform semidisk. Uniform semidisk is this. Okay, this is the uniform semidisk. Assume that ठीक है, इसका कुछ मास होगा and इसका कुछ रेडियस होगा. वी ऑलरेडी नो कि यूनिफॉर्म सेमीडिस्क का आंसर 4r/3 पाई पे आता है ना. सेंटर से 4r/3 पाई पे यहाँ पे कहीं पे इसका कॉम आता है. दिस डिस्टेंस इज 4r/3 पाई. ये आंसर हमें पता है इंटीग्रेशन से, राइट? नाउ can we find this without integration? Yes, the idea is yes, we can find this without integration. Just like amount of visualization will be required, and I will use one result की जो center of mass of a triangle होता है वो उसके centroid पे होता है. ठीक है, तो इस रिजल्ट को यूज करके we can solve this question in a very beautiful manner. ठीक है. Now what you have to do is to imagine that this is made up of very thin sectors. Like जैसे कि मैं अगर यहाँ पे तुम्हें डायग्राम लिखाऊं, तो लाइक एक सेक्टर, ये एक लाइक दिस इज वन पर्टिकुलर सेक्टर, यू कैन से, ठीक है, डी थीटा एंगल सबटेंड करता हुआ एक सेक्टर है. ठीक है, उसके बाद एक और सेक्टर ऐसा होगा, राइट? सो दिस विल आल्सो बी डी थीटा. ये एंगल विल आल्सो बी डी थीटा. ठीक है, एंड देन दिस एंगल विल आल्सो बी डी थीटा. ये एंगल भी डी थीटा होगा, राइट? एंड देन अगेन this angle will be d theta. So we can say that using this we can keep on dividing this in thin segments, and wherein each sector is d theta, right? Ab let me consider one such sector which is almost lying along y axis. So basically ये मैं इस सेक्टर की बात करता हूँ, एंड रिमेंबर दैट दिस इज अ वेरी वेरी थिन सेक्टर जो कि मैंने जूम करके दिखाया है. तो ये एंगल डी थीटा है, बट ये डी थीटा बहुत ही छोटा होगा. तो बेसिकली ये एक, अगर रियलिटी में सोचे तो ये एक like almost straight line type का होगा. Like it's a very very thin sector, you have to understand that. ठीक है. So if we call this point as origin, and this is almost tending to zero. Think this is almost tending to zero. d theta तो बहुत छोटा होता है, तो ये बहुत ही छोटा है. तो इसका जो y coordinate है, can we say that its y coordinate will be L only. ठीक है, एंड सिमिलरली जो है इसका भी y coordinate, जैसे इसके इसके y coordinate की बात करें y1, ठीक है, इस पॉइंट के, talking about this point, and similarly if we talk about this point, इसका भी y coordinate L ही हो जाएगा. ठीक है, because you can see कि this बहुत छोटा है, right? तो एंड इसका y coordinate 0 है. तो ये जो एक ट्रायंगल सा बन गया है, यू कैन थिंक ये सेक्टर अगर बहुत पतला है तो वी कैन से कि ये जो लेंथ होगी, this will be very very small, है ना. this length will be very very small, and we can think of this as an isosceles triangle. ठीक है, जिसमें दोनों साइड ये वाली एंड ये वाली एल एल हो चुकी है, राइट? तो इसका जो सेंट्रॉइड आएगा वो कहाँ पे आएगा? 0 + L + L/3, है ना. 0 + L + L/3. हेंस वी कैन से कि इसका जो सेंट्रॉइड आएगा वो यहाँ पे आएगा, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एल एक्चुअली आर है, so we can call it as r.
ठीक है, एल मतलब एल का मतलब आर आर ही हो गया। Okay, so we can say that ये y1 is nothing but r and y2 is also r. Okay, so basically 0 plus r by 3, so this becomes 2r by 3. So this height you can say is nothing but 2r by 3. Hence we can keep the comb of this triangle at a distance of 2r by 3 from the बॉटम। ठीक है, नाउ देर इज नो स्पेशलिटी अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ऐसी कोई खास बात नहीं है जो कि बाकियों में नहीं है। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर हम इस ट्राइंगल के कॉम को यहाँ पे रख सकते हैं तो फिर बाकी जैसे ये वाला जो ट्राइंगल था, जो फर्स्ट ट्राइंगल था, इसके कॉम को भी हम यहाँ पे 2r/3 पे रख सकते हैं। देन यू कैन अगेन इमेजिन कि मैं उसके जो नेक्स्ट वाला ट्राइंगल है, उसके जो नेक्स्ट ट्राइंगल है, इसको भी मैं रिप्लेस करके उसके 2r/3 पे रख सकता हूँ। सो व्हाट वुड यू गेट? यू विल सी कि हमने सारे कॉम्स को रिप्लेस करके, सॉरी सारे ट्राइंगल्स, ये पॉइंट ओ था, ठीक है, सारे ट्राइंगल्स को रिप्लेस करके उनके रिस्पेक्टिव कॉम पे रख दिया तो हमें एक ऐसा फिगर टाइप का मिल जाएगा, राइट? एंड दिस विल बी बेसिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r/3। ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बॉडी, तो आई एम श्योर दैट यू वुड रियलाइज कि बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि एक यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड पार्टिकल्स हैं। एंड वी कैन से कि अगर यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड पार्टिकल्स को हमने 2r/3 पे रखा है, सो इट्स अ सेमी रिंग, इट्स अ हाफ रिंग ऑफ रेडियस 2r/3, है ना? एंड हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास गाइस सबको पता होता है 2/पाई टाइम्स रेडियस पे होता है। ठीक है, पॉइंट ओ से 2/पाई टाइम्स रेडियस पे होता है। तो यू कैन से कि पॉइंट ओ से 2/पाई टाइम्स रेडियस, इसका जो कॉम होगा वो यहाँ पे होगा 2/पाई टाइम्स रेडियस। So 2/पाई times radius of this ring is 2r/3, and hence you see the answer is 4r/3 pi. So I'm sure that you would have understood कि हमने विदाउट इंटीग्रेशन बेसिकली प्योर इमेजिनेशन से इसका कॉम निकाल लिया, सेमी डिस्क का कॉम, जो कि आई एम श्योर तुमने बहुत बार इंटीग्रेशन से किया होगा। इंटीग्रेशन से भी देयर आर मेनी मेथड्स बाय व्हिच यू कैन फाइंड द कॉम ऑफ द हार्ड डिस्क, बट एज आई से कि ये सिर्फ प्योर इमेजिनेशन से हमने 4r/3 पाई निकाल लिया है। हेंस वी कैन से कि यूनिफॉर्म सेमी डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है 4r/3 पाई पे आ रहा है। ये रिजल्ट तो तुम्हें सबको पता था, बट जस्ट दैट इमेजिनेशन, इट्स प्योर इमेजिनेशन कि हमने सिर्फ इसको इमेजिन करके निकाल लिया 4r/3 पाई। आई एम श्योर दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड एंड यू वुड हैव लव्ड दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिफॉर्म हॉलोकोन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म हॉलोकोन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म हॉलोकोन में क्या कर सकते हैं? यूनिफॉर्म हॉलोकोन में भी माय डियर फ्रेंड्स सेम टेक्निक विल वर्क इफ यू थिंक केयरफुली। एक मैं यूनिफॉर्म हॉलोकोन बनाता हूँ, ठीक है, इसका भी आंसर हमें पता है, जो है ऊपर से मतलब वर्टेक्स से 2h/3 पे आता है इसका सेंटर ऑफ मास, या फिर बोल सकते हैं बेस से जो है h/3 पे आएगा। ठीक है, सो इफ दिस हाइट इज h, अगर ये हाइट h है, तो जो टॉप पॉइंट है, ये पॉइंट ओ बोल दिया जाएगा टॉप पॉइंट, तो यहाँ से 2h/3 पे मतलब समवेयर ओवर हियर वी कैन से विल बी द सेंटर ऑफ मास, राइट? समवेयर ओवर हियर विल बी द सेंटर ऑफ मास। अब इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं? ठीक है, तो ये 2h/3 होती है हाइट ऊपर से, ये हमें रिजल्ट पता है। ठीक है, बट अगेन मोस्टली यू वुड हैव फाउंड दिस यूजिंग इंटीग्रेशन। इसको रिंग्स में ब्रेक कर करके तुमने इंटीग्रेट किया होगा, ठीक है, और रिंग्स के सेंटर ऑफ मास को लिख के फिर इंटीग्रेट करके निकाला होगा, इफ यू हैव डन दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग इमेजिनेशन से करने की कोशिश करें तो हाउ वी कैन डू दिस? अगेन इसकी सरफेस को अगर तुम इमेजिन करो, ये जो सरफेस है मतलब इसकी ये जो रेड, ये मतलब यहाँ से पूरी जो इसकी सरफेस है, लेटरल सरफेस, ठीक है, इस पे अगेन एक पतला सा ऐसे ट्राइंगल इमेजिन करते हैं। ठीक है, सो थिंक ऑफ दिस अ वेरी एक बहुत ही पतला सा मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये जैसे ये ट्राइंगल यहाँ पे बेस पे जाके टच कर रहा है, फिर नीचे यहाँ पे ऐसे जाके टच कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इफ यू सी दिस ट्राइंगल, ठीक है, बहुत ही पतला ट्राइंगल है, मतलब ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ये चीज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत पतला ट्राइंगल है, मतलब अगेन ये एंगल बहुत छोटा है। ठीक है, दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो अगर अपन ऐसे बोले कि भाई स्लैंट लेंथ एल बोल देते हैं, मतलब इस लेंथ को मैं एल अगर बोल दूं, तो बोल सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके सेंट्रोइड में होगा। ये जो ब्लैक कलर का ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंट्रोइड में होगा। तो अगेन 0 + L + L, इन दोनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट, इसके भी कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, मतलब एक ऐसी एक्सिस इमेजिन कर रहे हो स्लैंट टाइप की। तो 0 + L + L/3 मतलब कि समवेयर ओवर हियर, तो वी कैन से कि यहाँ से कहाँ पे आ जाएगी 2l/3, मतलब स्लैंट सरफेस पे अगर मैं पॉइंट ओ से
स्लैंट सरफेस पे 12/3 डिस्टेंस आऊं, तो आई विल फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल विच इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, विच इज वेरी वेरी थिन रादर। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड कि अगर मैं पॉइंट ओ से स्लैंट सरफेस के अलोंग 12/3 डिस्टेंस पे आ जाऊं, तो मेरे को इस पर्टिकुलर बहुत ही पतले से ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, राइट। नाउ अगेन थिंक केयरफुली फ्रेंड्स, कि जो काम हम इस ट्राइंगल के लिए कर सकते हैं, सेम काम हम बाकी ट्राइंगल्स के लिए भी कर सकते हैं, बिकॉज जैसे इसके ही बाजू में अगर मैं एक और ट्राइंगल इमेजिन करूं, जैसे मैं बना के दिखाता हूँ एक बार, ठीक है, ग्रीन कलर से बनाते हैं। जैसे कि एक ये ट्राइंगल, ये इसके जस्ट बगल में गया होगा, ये देखो ये ऐसा ट्राइंगल, ठीक है। तो सेम काम इसके लिए भी कर सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बगल वाले का यहाँ पे आ जाएगा। तो अगेन यू कैन रिप्लेस ऑल द ट्राइंगल्स by the respective center of masses, and what are you going to get? So if you can think, you are going to get basically a collection of particles which will be uniformly spread, and they will be at a स्लैंट सर लाइक स्लैंट डिस्टेंस ऑफ 12/3, है ना, वो पॉइंट ओ से स्लैंट डिस्टेंस ऑफ 12/3 पे होंगे। अब इट इज वेरी इजी टू कमेंट कि अगर सिमिलैरिटी की यूज की जाए, तो अगर ये 12/3 है, तो करस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी, 2h/3 होगी, राइट। और ये कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स आ चुका है, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड पार्टिकल्स हैं, सो वी कैन थिंक ऑफ दिस एज अ रिंग। हेंस इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आएगा। तो वी कैन से कि पूरे के पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ गया, जो है इस पॉइंट पे, जो कि सेंटर ऑफ द रिंग है। दिस इज द सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर ऑफ द रिंग पे 2h/3, मतलब टॉप पॉइंट से 2h/3। सो बेसिकली पॉइंट ओ से 2h/3 पे सेंटर ऑफ मास आ रहा है, हेंस वी कैन से बॉटम से h/3 पे आया है हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो आई एम श्योर यू वुड हैव अप्रिशिएटेड दिस, कि हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास बॉटम से 2h/3 पे एंड टॉप से 2h/3 पे आया है, ठीक है। अगेन आई हैव यूज्ड द सेम लॉजिक ऑफ ब्रेकिंग डाउन दिस इनटू ट्रायंगल्स, ठीक है। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। अमेजिंग मेथड गाइस, बहुत ही प्यारा मेथड है ये, सिर्फ इमेजिनेशन से हमने कर दिया है विदाउट यूज ऑफ एनी इंटीग्रेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड बॉडी। So the third body is uniform solid sphere. So let's see how we can find the center of mass of uniform solid sphere without integration. Okay. So by the way, I'm sure that all of you know the answer. The answer is जो है 3r/8. 3r/8 आंसर होता है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास का, राइट। सो दिस इज यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, एंड ये इस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का सेंटर है, ठीक है। Now, in this case, what you have to imagine is that you have to think of this as a collection of cones. जैसे कि पहले केस में, जो हमने पहले केस की बात की थी, जिसमें यूनिफॉर्म हाफ डिस्क थी, दैट वाज कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेरी थिन ट्रायंगल्स सेंटर्ड। अगर तुम ऊपर जाओ और देखो, तो इफ यू टॉक अबाउट दिस, ठीक है, तो इस फिगर की अगर अपन बात करें, तो ये इस पॉइंट पे सेंटर्ड, पॉइंट ओ पे सेंटर्ड कलेक्शन ऑफ ट्राइंगल्स था। और इस ट्राइंगल को अगर हम रोटेट कर दें, लाइक इस एक पर्टिकुलर, जैसे एक ट्राइंगल लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये जो ऊपर वाला था, इसको ही अगर हम ले लें और इस पूरे ट्राइंगल को पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर दें, तो इट विल स्वीप आउट एंटायर सेमी डिस्क, है ना। यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक पूरा रोटेट कर दें, तो इट विल, मतलब 180 डिग्री से, तो इट विल स्वीप आउट एंटायर semi disk, right? Now, similarly, what you can think of here, very thin solid cones. Please try to understand what I'm saying. Very thin solid cones. Solid cone का center of mass उसके apex से 3h/4 पे होता है, by the way, ठीक है। तो अगर मैं एक बहुत ही पतला सा सॉलिड कोन इमेजिन करूं, ठीक है, जिसका जिसका एपेक्स, ठीक है, उस इसके सेंटर पर रखा गया है, सो थिंक ऑफ दिस एज अ वेरी थिन सॉलिड कोन, ठीक है। तो जिसका सॉलिड एंगल डी ओमेगा है, मतलब दिस एंगल इज डी ओमेगा, राइट। अब अगर मैं इस सॉलिड को, इस पूरे सॉलिड कोन के जो ये जो बेस है, यहाँ पे ये जो बेस आ रहा है, ये देखो ऊपर जो, ये देखो ये जो बेस आ रहा है, इस पूरी बेस को इसके सर सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे मूव करा दूं, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे पिछले एग्जांपल में हमने ट्राइंगल के बेस को, लाइक फर्स्ट एग्जांपल में ट्राइंगल का जो ऊपर वाला था, है ना, ये वाली आई एम टॉकिंग अबाउट, एक बार फिर से देखते हैं, ये वाली जो लेंथ थी, दिस लेंथ, ठीक है, दिस लेंथ, ये लेंथ अगर मैं से डीएल है, तो डीएल 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 ऐसे करके अगर मैं पूरा
यहाँ तक 180 डिग्री तक मूव करा दूं, तो इट विल दिस ट्राइंगल विल स्वीप आउट एंटायर सेमी सर्कल, सेमी डिस्क, राइट। तो सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस बार इस बार ये जो डीएस सरफेस है, ठीक है, डीएस सरफेस, इस डीएस सरफेस को इस 2 पाई r स्क्वायर एरिया पे, ये जो 2 पाई r स्क्वायर एरिया है कर्व्ड सरफेस का, ठीक है, ये जो कर्व्ड सरफेस का 2 पाई r स्क्वायर एरिया नहीं है, ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक इस पे स्वीप करा दूं, तो बाकी पूरा तो ये पूरा कौन है वो एंटायर सेमी सॉलिड, ये जो सेमी हेमिस्फीयर है, हाफ हेमिस्फीयर है, इसको हेमिस्फीयर रादर सॉलिड हेमिस्फीयर, इसको ये पूरा का पूरा मतलब स्वीप कर जाएगा, ठीक है। तो 3D में इट्स स्लाइटली मोर डिफिकल्ट टू इमेजिन, बट अगर ध्यान से सोचो, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट से सोचोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जो अगर मैं मतलब ये जो डी ओमेगा एंगल है, ये डी ओमेगा करके पूरा ये 2 पाई का सॉलिड एंगल कवर हो जाएगा, अगर मैं पूरे इस कोन इस सेम बहुत जो पतला सा कोन बनाया है, इस कोन को पूरा जो है 2 पाई के सॉलिड एंगल में ऐसे रोटेट करा दूं, ठीक है। तो तो डी ओमेगा ऐड होकर 2 पाई बन जाएगा, एंड दिस ब्लैक सरफेस विल ट्रेस आउट एंटायर 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये बात इमेजिन होती है, तो अगेन व्हाट वी कैन डू इज कि इस कोन का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, इस कोन का जो सेंटर ऑफ मास है, वो इसके सेंटर से जो है 3r/4 पे होगा, क्योंकि इसकी हाइट और रेडियस तो बराबर है, इस कोन की एक बहुत ही पतला सा कोन है लाइक दिस, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी थिन कोन, तो इसकी जो हाइट है वो रेडियस के बराबर ही अप्रोक्सीमेटली, तो इस कोन को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, एंड वी कैन कीप दिस एट इट्स कॉम विच इज एट अ 3r/4, so this distance is 3r/4, right? Now that you can do for all the other cones, तो मतलब ये वाला एक ऐसा कोन होगा, ठीक है, तो इसके लिए भी ये काम कर सकते हैं, फिर सबके लिए काम कर सकते हैं। So if you think carefully, what will you get? You're going to get collection of particles, ठीक है, अगर ये पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ओ बनाऊं, तो यू विल गेट कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स विच विल बी एंटायरली स्प्रेड ओवर अ सरफेस, माइंड यू, ऑफ रेडियस 3r/4, ठीक है। ये सरफेस है, इट्स नॉट अ सेमी रिंग, इट्स अ हॉलो हेमिस्फीयर। थिंक केयरफुली गाइस, 3 डायमेंशंस में सोचने की कोशिश करो, ठीक है। हॉलो हेमिस्फीयर है ये, ठीक है, हॉलो हेमिस्फीयर, ठीक है। इफ यू थिंक केयरफुली, इट विल बी अ सरफेस, हॉलो हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 3r/4, ठीक है। एंड यू ऑलरेडी नो कि हॉलो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हाफ द रेडियस पे होता है, ठीक है। तो जो इसका जो आंसर आता है वो ये जो होता है हाफ इंटू रेडियस, तो इसका जो रेडियस है वो 3r/4 है, राइट। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, वी कैन से कि जो सॉरी इसका जो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3r/8। ये जो कॉम है कितना आ गया, ओवरऑल कॉम की वैल्यू आ गई 3r/8, ठीक है। तो वी कैन से कि हमने अगेन इसको इमेजिनेशन से कर लिया विदाउट इंटीग्रेशन, इसको तुमने इंटीग्रेट करके निकाला होगा। देयर आर मेनी वेज टू फाइंड दिस, डिस्क में ब्रेक कर सकते हैं या हॉलो हेमिस्फीयर में ब्रेक करके इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट अगेन दिस इज प्योर इमेजिनेशन विदाउट इंटीग्रेशन। सो आई एम श्योर यू वुड हैव लव्ड these three imaginations, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, एज आई टोल्ड यू, आई एम गोइंग टू टेल यू अमेजिंग कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के अपन बात करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आई एम श्योर यू वुड, इस देखो ये क्वेश्चन तो अगर तुम पढ़ोगे स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट गाइस। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे a linear rod of mass density lambda where x is measured from the left end is kept along the x axis। ये lambda कांस्टेंट नहीं है, lambda का वेरिएशन पार्ट ए पार्ट बी में दिया गया है। its left end is at the origin, we have to find the location of com without integration if lambda is lambda naught x। lambda naught कोई कांस्टेंट है, ठीक है, lambda naught is a constant, lambda naught कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। So let's quickly understand the scenario। Suppose this is y axis and this is x axis, right? And जो है यहाँ पे एक बहुत ही थिन सी रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ लेट अस से l है, राइट। सो इस रॉड की लेंथ l है, ठीक है। दिस शुड हैव बीन आल्सो मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। वी अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द रॉड इज l, ऑफ कोर्स आंसर l के टर्म्स में ही आएगा, ठीक है। इस रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी है, दैट फॉर लेट्स टॉक अबाउट पार्ट ए, तो इस रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी है दैट इज लैम्डा नॉट एक्स,
वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे अगर मैं जाऊँ तो लीनियर डेंसिटी बढ़ती जा रही है, यू कैन सी, एंड इट्स द वेरिएशन इज लीनियर वेरिएशन, लैम्डा नॉट एक्स है, तो लीनियर मास डेंसिटी इसकी बढ़ती जा रही है। ओके, एंड वी हैव टू टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पर से इस क्वेश्चन में सच कुछ ज्यादा दम नहीं है, ये सभी बच्चे कर सकते हैं अगर इसको तुम प्रोसीजरल वे में करोगे। तो प्रोसीजरल वे में कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, लेट मी जस्ट डू दिस बाय प्रोसीजरल मेथड वेरी क्विकली। तो अगर मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे जाऊं, ठीक है, और एक ये dx लेंथ की पार्टिकल लूं, ठीक है, तो इस dx लेंथ का जो मास लिखा जा सकता है dm, वो लिखा जा सकता है लैम्डा dx। लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट x है, उसको मैं dx से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, इंटीग्रल x dm डिवाइड बाय इंटीग्रल dm। ठीक है, यहाँ पे जो x है वो इस dm का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है, तो इस dm का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहीं पे लाई कर रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास अगर यहीं पे लाई कर रहा है तो बोल सकते हैं इस x की वैल्यू x ही हो जाएगी, और dm की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा नॉट x dx डिवाइड बाय इंटीग्रल dm, which is again lambda naught x dx। ठीक है, नाउ यू कैन सिंपली कट दिस, lambda naught कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल इंटीग्रेट फ्रॉम जीरो से l। तो जब ऊपर वाले को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई सॉरी एक्स क्यूब बाई थ्री। ठीक है, डिवाइड बाई नीचे आएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट्स जीरो से l डालोगे दोनों जगह, तो ऊपर वाले में जब लिमिट जीरो से l डालेंगे और नीचे वाले में जीरो से l डालेंगे, सो यू विल गेट बेसिकली ये 12/3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दिस इज द सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे 12/3 पे, पॉइंट ओ से 12/3 पे कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ इसका आएगा। So this is the procedural way to solve this question, but again I am going to tell you an amazing method guys, and we are going to remember this concept, which is a beautiful concept। ठीक है, तो basically let's try to understand कि what I want to discuss over here। तो अगर हम इस रॉड को ध्यान से सोचें तो बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो रॉड है, ठीक है, जैसे कि इस टाइप की एक रॉड है, ठीक है, तो यहाँ पे जो उसकी जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट एक्स टाइप की मास डेंसिटी है। ठीक है, तो इफ यू थिंक केयरफुली, यहाँ पे जो x के साथ इसका मास बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स एवरी सब्सिक्वेंट पार्टिकल, अगर मैं इस डायरेक्शन मूव करता हूँ तो हर एक पार्टिकल, मतलब हर एक अगला पार्टिकल पिछले पार्टिकल से हैवी होता जा रहा है। ठीक है, जैसे अगर डिस्क्रीट वे में सोचा जाए इसको, तो कैन यू थिंक लाइक कि जैसे कि तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं रखा है, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 kg का पार्टिकल रखा है, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 kg का पार्टिकल रखा है, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 kg का पार्टिकल रखा है, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 kg का पार्टिकल रखा है। ऐसे करते करते मान लिया लेट्स से यहाँ पे 10 तक अपने जूम कर लेते हैं, 10 kg का पार्टिकल रखा हुआ है। सो लाइक दिस 0 kg, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, है ना, 5 kg, ऐसे करते करते 10 kg तक का पार्टिकल रखा हुआ है। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। ठीक है, तो इस टाइप का एक सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें ये इमेजिन करना है कि, तो बेसिकली इस टाइप की कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना था, राइट। जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एवरी सब्सिक्वेंट पार्टिकल का मास जो है वो बढ़ता चला जा रहा है ना। अब हमें इस टाइप के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब कैन वी कैन वी डू दिस एक्टिविटी, देखो मैं क्या ऐसे कर सकता हूँ कि इसको ऐसे इमेजिन कर लिया कि इस जीरो को तो यहीं पे रख देते हैं, ठीक है, इस वन को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, फिर टू को हमने ऐसे रख दिया 1+1, ठीक है, फिर थ्री को हमने ऐसे रख दिया 1+1+1, ठीक है, फिर जो है इस फोर को हमने ऐसे रख दिया 1+1+1+1, ठीक है, फिर फाइव को हमने ऐसे रख दिया 1+1+1+1+1, ठीक है, तो ऐसे सिक्स को हमने ऐसे रख दिया 1+1+1+1+1+1 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, तो यू कैन सी दिस एंटायर सिस्टम दिस एंटायर सिस्टम कैन बी थॉट ऑफ एज ट्रायंगल। ठीक है, इसको ऐसे ट्रायंगल इमेजिन कर सकते हैं क्या, कि एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का ट्रायंगल बन चुका है। कैन यू थिंक लाइक दिस, कि एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने देखो अभी भी सेम एक्स पे सेम 4 kg, जैसे फॉर एग्जांपल इस टू वाले टू इस 2 kg का जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो तुम्हें सेम मिल रहा है यहाँ पे, मतलब सेम एक्स पे अभी भी 2 kg रखा है। ये 3 kg का एक्स कोऑर्डिनेट अभी भी सेम है, ये 3 kg का एक्स कोऑर्डिनेट अभी भी सेम है। हमने किसी भी, मतलब हमने ये जो काम किया इससे एक्स कोऑर्डिनेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेंटर ऑफ मास के, क्योंकि हमने किसी भी पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं किया है। ये जो 10 kg था इसका भी एक्स अभी भी सेम है, इसका भी एक्स जो है अभी भी सेम है, हर एक पूरे 10 kg का एक्स सेम है, हमने सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज किए हैं। बट हमें पहले ही पता है कि रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही आएगा,
तो हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना ही नहीं है, हमें तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन थिंक ऑफ इज की दिस रॉड कैन बी थॉट ऑफ एज यूनिफॉर्म डेंसिटी का ट्राइंगल। यहाँ पे मास यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुका है, सो वी कैन थिंक ऑफ इट एज अ यूनिफॉर्म डेंसिटी का ट्राइंगल, राइट, जिसका जो कि अपन ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो अगर इस यूनिफॉर्म डेंसिटी के ट्राइंगल को अपन ऐसे बना सकते हैं, तो what can we say about the center of mass, the x coordinate of the center of mass of this triangle? So of course we know that triangle का center of mass उसके centroid पे लाई करता है। तो x coordinate अगर निकालना है तो इस पॉइंट का coordinate 0 था, इस पॉइंट का x coordinate l है, इसका भी x coordinate l है, तो 0 plus l by 3 is equals to 2l by 3। x coordinate of com हमारे पास आ गया 2l by 3। Now guys, this so basically you can see कि ये आंसर हमारा इंटीग्रेशन से भी आया था, and this is an absolutely amazing way to find the center of mass of this type of system। ठीक है, इसका यूज हम आगे भी करेंगे, आगे के क्वेश्चंस में भी करेंगे, जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वीडियो की उसमें भी इसका यूज करेंगे हम। बट ध्यान से समझो तो हमने, अब ये तुम्हें लग सकता है कि बहुत बड़ा है, बट बिल्कुल बड़ा नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ एक इमेजिनेशन से इस रॉड को इस इक्विवेलेंट ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया है फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। रिमेंबर, वाई कोऑर्डिनेट नहीं निकालना है था हमें, वाई कोऑर्डिनेट ट्राइंगल से नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वाई कोऑर्डिनेट तो इस रॉड का जीरो ही है, और ट्राइंगल से सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स इस ट्राइंगल का 0 + 0 + l/3 आ जाएगा, विच इज नॉट राइट, बिकॉज दिख रहा है हमने वाई कोऑर्डिनेट सारे पार्टिकल्स का चेंज किया था, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन वाई एक्सिस पे चेंज हुआ है, बट एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं हुआ है। सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट विच यू शुड रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को कैसे ध्यान रख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को जो तुम्हें याद रखना है वो रखना है कि अगर, जैसे कि इसको ऐसे याद रखो कि अगर जो मास है, ठीक है, मास मास का वेरिएशन लीनियर हो रहा हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली रॉड है, सॉरी, एक नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली रॉड है, एक मास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जिसका लेफ्ट एंड पे कोई भी मास ना हो, मतलब देखो यहाँ पे लैम्डा नॉट एक्स था ना, तो एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, तो मतलब कि यहाँ पे कोई भी मास ना हो, जीरो से स्टार्ट हो रहा हो, एंड मास वेरिएशन लीनियरली बढ़ता जा रहा हो, मतलब जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लीनियरली बढ़ रही है, मतलब एक्स के साथ लीनियरली मास डेंसिटी बढ़ती जा रही हो, तो जो इफेक्टिव मास की लोकेशन है वो लेफ्ट एंड से 2l/3 डिस्टेंस पे आती है। दिस डिस्टेंस इज 2l/3। फिर से मैं बोलता हूँ कि अगर लेफ्ट एंड पे कोई भी मास ना रखा था, एंड जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है, वो लीनियरली बढ़ रहा है, तो इफेक्टिव मास कहाँ पे रख सकते हैं, 2l/3 पे रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, इसी को एक स्टेप आगे लेके चले अगर हम लोग, तो अब जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे ऊपर जाए एक बार, सॉरी, एक बार ऊपर देखते हैं, यहाँ पे अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर टाइप की होती तब क्या करते हैं, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर टाइप की तब क्या करते हैं। जैसे ही आई वुड encourage you all to think for this with after pausing this video, लैम्डा को अगर मैं लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर मानूं, तो जैसे ही क्वेश्चन ये मैं पूछता हूँ किसी बच्चे से, तो उसका अगर उसको पार्ट ए समझ में आया है, तो और बच्चा सोच सकता है अच्छा से, तो उसको ये थॉट आता है कि फिर बेसिकली जैसे यहाँ पे जो ट्राइंगल बन गया था पार्ट ए में, अब की बार पैराबोला बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि 0 पे 0 रखा है, 1 पे 1 kg रखा है, 2 पे 4 kg रखा है, 3 पे 9 kg रखा है, तो बेसिकली दिस सॉर्ट ऑफ पैराबोलिक जो है टाइप की बॉडी ऐसी बन जाएगी, मतलब ये जो उसका जो ये वाला जो सरफेस होगा, ठीक है, ये वाला सरफेस पैराबोला होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये इस टाइप, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स ऑफ कोर्स करेक्ट, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें पैराबोलिक बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता नहीं होता है। ट्राइंगल के केस में हमें ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास पता था, बट पैराबोलिक बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमें पता नहीं है। तो एनीवे इसको फिर हमें इंटीग्रेशन से ही करना पड़ेगा। अगर तुम पैराबोला का सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो बेसिकली अगेन तुम्हें इंटीग्रेट करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो दिस मेथड इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन अवॉइडिंग इंटीग्रेशन, बट देयर इज समथिंग एल्स दैट वी कैन डू एंड विच इज अगेन ब्यूटीफुल। ठीक है, इसको वापस से अपन इमेजिन करते हैं, बहुत ही शानदार चीज अपन सीखने जा रहे हैं, ध्यान से देखते हैं इसको। जैसे कि ये जो है वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, एंड थिंक केयरफुली गाइस व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे मैं एक ऐसा कोन इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है, इस टाइप का कोन। ठीक है, तो इस ये सेंटर, एक सेकंड थोड़ा सा फिगर और अच्छा बना लेते हैं, ये हो गया कोन का सेंटर, ठीक है, और लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ द कोन है, एक्स एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ द कोन।
राइट। अब व्हाट दिस कौन विल हेल्प अस इन अचीविंग इज लाइक इसका आंसर हम विदाउट इंडिकेशन निकालने जाएंगे कैसे। देखो इस टाइप के ये जो गिवन मास वेरिएशन था इसमें क्या था, जो मास था वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट था। मतलब अगर मैं एक्स के साथ आगे बढ़ूं, मतलब मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ूं, तो हर एक एक्स पे जो मास प्रेजेंट था वो एक्स स्क्वायर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा, सॉरी एक्स स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा था, मतलब एक्स स्क्वायर का फंक्शन था। वी कैन थिंक लाइक दैट कि अगर मैं एक्स के साथ आगे बढ़ूं इस डायरेक्शन में, तो हर एक एक्स पे रखा हुआ मास एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट था, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था। ठीक है, नाउ कैन वी से कि इस कोण में भी ऐसा हो रहा है? इंडीड वी कैन से दैट, लेट्स थिंक व्हाई। अगर मैं यहां से एक्स डिस्टेंस पे जाऊं और एक ये पतली सी डिस्क काटूं, ठीक है, यू कैन थिंक दिस ऑफ अ डिस्क, ठीक है, इस पतली सी डिस्क काटूं, तो इस डिस्क का अगर मैं डीएम लिखूं, देखो डीएम, ठीक है, तो अगर इस डिस्क का मैं डीएम लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, रो इंटू डीएक्स, ठीक है, रो इंटू डीएक्स इंटू इसका ये जो अगर रेडियस आर हो जाए तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डीएक्स, डीएक्स ये डिस्टेंस हो गई, डीएक्स इज दिस थिकनेस, ये थिकनेस है डीएक्स, right? This is how you're going to write the dm of this. Now you can see that r by x is constant, which is tan theta. ठीक है, r by x is constant, which is tan theta, and hence this can be thought of as r की वैल्यू को x square tan square theta लिख सकते हैं। Now just think guys, ये जो dm है x square के प्रोपोर्शनल आ गया कि नहीं आ गया? हर एक सब्सीक्वेंट डिस्क के लिए रो सेम है। जैसे जैसे मैं इस डिस्क की बात करता, ठीक है, तो इस डिस्क का मतलब ये जो डिस्क तुम्हारे स्क्रीन पे तुम्हें दो डिस्क दिख रही होगी, एक ये वाली डिस्क और एक ये वाली डिस्क, ठीक है, थ्री डी में ये डिस्क है, तो डिस्क वन और डिस्क टू का रो सेम है, डीएक्स दोनों की सेम है, थिकनेस दोनों की सेम है, पाई सेम है, tan स्क्वायर थीटा सेम है, सिर्फ एक्स जो है डिस्क टू का एस एक्स बड़ा हो गया है, तो जो डीएम ऑफ डिस्क टू है वो एक्स स्क्वायर पे डिपेंडेंट आ गई। Hence this represents the same mass distribution which is represented by this function. Hence guys, we can say that जो इस कोन का सेंटर ऑफ मास आएगा वो ही इस फंक्शन का भी सेंटर ऑफ मास आएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स सेंटर ऑफ मास मास डिस्ट्रीब्यूशन पे ही डिपेंड करता है। तो वी कैन से इस कोन का सेंटर ऑफ मास तो इस पॉइंट से 3 जैसे अगर इस हाइट को अपन जो है लेट से एल बोल देते हैं इस लेंथ को, तो 3l/4, तो यहाँ से 3l/4 पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगी। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस अमेजिंग मेथड गाइस, जो यहाँ से 3l/4 पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तो सीधा हम विदाउट इंटीग्रेशन बोल सकते थे कि x कॉम आएगा 3l/4, and you can justify this answer after doing performing integration, but as I told you, this is pure visualization, pure imagination that will help us to understand कि आंसर 3l/4 क्यों आ रहा है। ठीक है, अब जब ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं सिखा देता हूँ तो फिर बच्चा जनरलाइज भी कर सकता है रिजल्ट, बट आई थिंक जनरलाइज करने की जरूरत नहीं है, तुम इमेजिनेशन से सोचो तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा। लाइक जैसे जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, जब हमने देखा कि एक सेकेंड, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हाँ, जब हमने देखा कि भाई लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स थी, ठीक है, तो जो सेट तो यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, तो एक्स कॉम क्या आई, एक्स कॉम आई जो है 2l/3, मतलब यहाँ पे 2 आ गया न्यूमरेटर में और नीचे 3 आ गया, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स कॉम क्या आई 3l/4, मतलब न्यूमरेटर में 3 आ गया और नीचे 4 आ गया। तो अगर अब इसको जनरलाइज करना है, x की पावर n है, तो x कॉम क्या आ जाएगा, जो है आ जाएगा n+1 इंटू l/n+2, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन रिमेम्बर दिस रिजल्ट, बट ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, बट अगर तुम चाहो तो उसको याद रख सकते हो कि ये आएगा x कॉम ऑफ सेंटर ऑफ मास, विच बट ये जो हमने दो तरीके सीखे ये बहुत ही बढ़िया है, उसमें जो फर्स्ट मेथड था 12/3 वाला, उसका जो वो जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर मास मास डिस्ट्रीब्यूशन लीनियरली वेरी कर जाए एंड लेफ्ट एंड पे मासलेस पार्टिकल हो, मतलब लेफ्ट एंड जीरो से स्टार्ट हो रहा हो, जहां पे यू कैन सी एक्स को जीरो रख दें, तो फिर लेफ्ट हैंड अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा हो और लीनियर वेरिएशन हो मास डेंसिटी का, तो फिर इफेक्टिव मास की जो लोकेशन आती है वो 2l/3 पे आती है, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। तो let me show you the question, let me apply this concept in one of the questions। अब जिन जिन बच्चों ने फ्लूइड्स पढ़ा है, फ्लूइड्स पढ़ रखा है, फ्लूइड्स चैप्टर, तो उसमें एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि जैसे कि एक मान लो ये क्यूबिकल, जैसे मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, ठीक है, ये ओपन क्यूबिकल कंटेनर है, ठीक है, लेट्स इमेजिन एन ओपन क्यूबिकल कंटेनर, ठीक है, तो ये टॉप सरफेस इसकी ओपन है,
ठीक है, यू हैव टू थिंक दैट टॉप सरफेस इसकी ओपन है, राइट, ऊपर से इसका ढक्कन खुला हुआ है, राइट, तो दैट मीन्स ये वाली सरफेस ओपन है, जो टॉप ढक्कन है ना इसका खुला हुआ है, राइट। अब इसके अंदर हमने, और एक मिनट में नीचे भी बना देता हूँ, ठीक है, और सब पांचों फेसेस इंटैक्ट है, सिर्फ टॉप सरफेस खुला हुआ है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो है पानी भर दिया, ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, फ्लूइड्स अगर पढ़ा है तो सबने किया होता है सवाल, ठीक है। तो इसके अंदर हमने पानी भर दिया जिसकी डेंसिटी रो है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट कर दो, वी हैव टू फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस, सॉरी, वी हैव टू फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वाटर ऑन दिस, लेट्स से एक किसी भी एक वॉल पे, तो लेट्स से इस वॉल पे वाटर क्या फोर्स लगा रहा होगा, टोटल फोर्स निकालना है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली वो जो नेट फोर्स है वो कहाँ से पास हो रहा होगा, जैसे कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स की अगर मैं ये कहूँ कि भाई फोर्स को कहाँ से पास कराया जाए, ठीक है, तो वो क्या आएगा। तो आई एम श्योर अगर तुमने फ्लूइड्स पढ़ा है तो क्वेश्चन किया होगा, तो बच्चे याद कर लेते हैं इसका रिजल्ट की भी, इसका आंसर कैसे आ जाएगा, जो मिडिल पॉइंट पे प्रेशर है, जैसे कि अगर इस हाइट को अगर अपन फॉर एग्जाम्पल एच बोले, तो जो मिडिल पॉइंट पे प्रेशर है, मिडिल पॉइंट पे, ठीक है, मिडिल पॉइंट पे जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो जी एच बाई टू हो जाएगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में निगलेक्ट किया हुआ है, तो रो जी एच बाई टू आ जाएगी यहाँ पे प्रेशर। इस प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो पूरे इस एरिया से, ठीक है, इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा रो जी एच क्यूब बाई टू, ये आ गया नेट फोर्स, ठीक है, ये तो फोर्स की वैल्यू हो गई। और ये फोर्स पास कहाँ से करेगा, तो फोर्स पास करेगा बॉटम से एच बाई थ्री हाइट पे, मतलब कि इस पॉइंट से पास करेगा, तो ये जो यहाँ से फोर्स ऐसे लिक्विड धक्का लगा रहा होगा, एंड दिस हाइट विल बी एच बाई थ्री, फोर्स यहाँ से पास हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर फ्लूइड्स पढ़ा है तो तुम्हें ये रिजल्ट पता होगा। तो अब बहुत बच्चे याद कर लेते हैं और बहुत बच्चे सिंपली रट लेते हैं ट्राइंगल का सेंट्रोइड एंड ये सब, बट अगेन याद करने से फायदा नहीं है, तुम इसको इमेजिन करो, तुम इसको इमेजिन करो, और वही कॉन्सेप्ट अपन लगाएंगे जो भी हमने सीखा है, कि अगर एक मास, एक रॉड थी जिसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा नॉट एक्स टाइप का था, एंड लेफ्ट एंड पे जीरो मास था, तो फिर इफेक्टिव मास की लोकेशन 2l/3 आई थी, ठीक है। अब तुम अगर इसको ध्यान से सोचो, तो देखो सबसे पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि ये जो फोर्स की वैल्यू आएगी एफ नेट, ये कैसे आया, ठीक है। इसको भी अपन विदाउट इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं एवरेज के कॉन्सेप्ट से, तो अब ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, तो बेसिकली मैं सिर्फ वो वाला फेस बना रहा हूँ की बार, ठीक है। तो लेट्स से कि ये एक फेस, वो वाला जो लेफ्ट फेस था वो मैंने बना दिया, ठीक है ना। अब बेसिकली तुम ये समझो कि ये जो मिडिल वाली स्ट्रिप है एकदम ऊपर से एच बाई टू हाइट पे, ठीक है, ये हमारी रेफरेंस स्ट्रिप हो गई, मतलब ठीक है, इस पे तो प्रेशर हमें पता है, रो जी एच बाई टू होगा यहाँ पे प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है रो जी एच बाई टू, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से तुम जैसे कि एक्स डिस्टेंस ऊपर जाओ, या बोल सकते हैं एल डिस्टेंस, लेट से एल डिस्टेंस ऊपर जाओ, ठीक है, और एक ऐसी स्ट्रिप ले लो, ठीक है ना, और इसी रेड स्ट्रिप से तुम एल डिस्टेंस नीचे जाओ, ठीक है, रेड वाली स्ट्रिप से एल डिस्टेंस नीचे जाओ, और फिर एक इक्वल टाइप की स्ट्रिप ले लो, ठीक है। अब दोनों का एरिया डी ए डी है, ठीक है, इसका भी एरिया डी ए है, ठीक है, और इसका भी एरिया डी ए है, ठीक है। तो ऊपर वाली स्ट्रिप पे, जैसे जो इसको मैं स्ट्रिप वन कह देता हूँ, ठीक है, इस वाली स्ट्रिप को मैं स्ट्रिप वन कह देता हूँ और इसको स्ट्रिप टू कह देता हूँ, ठीक है। अब तुम एक बात सोचने की कोशिश करो कि स्ट्रिप वन पे पी के कंपैरिजन में, पी मतलब जो रेड स्ट्रिप है, ये पी है, ठीक है, पी, पी के कंपैरिजन में ऊपर वाली स्ट्रिप पे एस वन पे जितना प्रेशर घटा, पी टू पे मतलब एस टू पे उतना ही प्रेशर बढ़ गया। सोचो, रो जी एच बाई टू माइनस एल रो जी एस वन पे आएगा, एंड रो जी एच बाई टू प्लस एल रो जी एस टू पे आएगा। तो बेसिकली जितना एस वन पे घटा उतना ही एस टू पे बढ़ गया, पी के कंपैरिजन में, है ना। तो अगर मैं एफ वन लिखता, मतलब कि फर्स्ट, मतलब इस पे जो एस वन है उस पे फोर्स लिखता, तो मैं क्या लिखता, पी माइनस, मान लो जो प्रेशर घटा, ठीक है, उसको अपन लिख सकते हैं एल रो जी, ठीक है, इंटू डी ए, ठीक है। और एफ टू पे क्या लिखता, तो लिखता पी प्लस एल रो जी इंटू डी ए, ये लिखता, ठीक है। और जब मैं एफ वन प्लस एफ टू करता, तो यू कैन सी एल रो जी वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता, सिंपली आ जाता पी डी ए प्लस पी डी ए, ऐसे आ जाता। समझ में आया। तो बेसिकली अपन ऐसे मान सकते हैं कि भाई
जितना, जैसे रेड स्ट्रिप के ऊपर जितना प्रेशर डिक्रीज हुआ, उतना ही रेड स्ट्रिप के नीचे उतना ही प्रेशर इंक्रीज हो गया फॉर टू स्ट्रिप्स विच आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द रेड स्ट्रिप, है ना। हेंस एंड सिंस द एरिया इज सेम देयरफॉर नेट फोर्स विल एवरेज आउट। मतलब क्या हो गया कि हम ऐसा मान सकते हैं, यहां से तुम देख सकते हो F1 की वैल्यू को भी पीडीए माना जा सकता है और F2 की वैल्यू को भी पीडीए माना जा सकता है। एंड हेंस वी कैन से कि इस स्ट्रिप और इस स्ट्रिप दोनों पे जो प्रेशर की वैल्यू है उसको अपन ऐसा मान सकते हैं कि वो रेड स्ट्रिप के बराबर है। And now you can do this for any two strips which are at a distance of L. Hence, for example, अगर मैं इस स्ट्रिप की बात करूं और इस स्ट्रिप की बात करूं तो अगेन सेम लॉजिक लग जाएगा। फिर मैं अगर एक स्ट्रिप की बात करूं और एक स्ट्रिप की बात करूं, सेम लॉजिक लग जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे सरफेस एरिया पे, पूरे के पूरे एरिया पे अपन ऐसे मान सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू रो जी एच बाई टू ही है, विच इज एवरेज प्रेशर। देयरफॉर वी कैन से कि जो नेट फोर्स आएगा ये आ जाएगा तुम्हारा rho g h by 2, which can be thought of as acting on the entire surface multiplied by the area, which is h square. So that's why we can say the answer will be rho g h cube by 2. I hope you would have understood. Now the more important part is ki from where this force is going to pass. Okay. Now guys, imagine what I'm going to tell you. Again, beautiful thing. फिर से अगर मैं उसी दीवार को बनाऊं, ये एक दीवार है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर से, ध्यान करो, ऊपर से मैं अगर जो है एक्स डिस्टेंस नीचे आऊं और एक स्ट्रिप लूं, ठीक है। तो इस स्ट्रिप पे जो फोर्स है डीएफ, वो किस टाइप का फंक्शन फॉलो कर रहा है, यू विल बी अमेज्ड टू सी कि इस डीएफ की वैल्यू, यहाँ से जो फोर्स प्रेशर लग रहा होगा, ऐसे प्रेशर फोर्स जो आ रहा होगा वो क्या होगा, ठीक है। डीए, डीए, ठीक है, डीए इसका एरिया हो गया, ठीक है, डीए इज दी इस एरिया, ये एरिया डीए हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स रो जी, डीए मल्टीप्लाइड बाई एक्स रो जी, यही आएगा डीएफ, ठीक है। नाउ थिंक, इस फंक्शन को ध्यान से सोचो, ठीक है। यानी कि डीएफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, डीएफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, एंड यहाँ पे फोर्स जीरो है क्योंकि एक्स यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे प्रेशर ही जीरो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निगलेक्ट कर दिया हमने। बेसिकली फोर्स इज वेरिंग लीनियरली एंड द टॉप एंड पे फोर्स जीरो हो गया। और हमें क्या निकालना है कि इफेक्टिवली फोर्स कहाँ से पास होगा, यानी इफेक्टिवली फोर्स को कहाँ पे रखा जाए। फोर्स का मतलब इफेक्टिव लाइन ऑफ पासिंग, हमने क्या सीखा था कि मास, देखो रॉड को याद करो, इस रॉड को, ठीक है। मास यहाँ पे जीरो था और लीनियर वेरी मास लीनियरली वेरी कर गया था, मतलब जो मास रखा हुआ था हर एक एक्स पे, जो मतलब मास हैवी होता जा रहा था, एक्स के साथ लीनियरली वेरी कर रहा था। तो इफेक्टिवली हमने मास को कहाँ पे रखा था, मास इफेक्टिवली हमने कहाँ पे रखा था, 12/3 पे रखा था, ठीक है। सेम लॉजिक, फोर्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है और लीनियरली वेरी कर रहा है, तो इफेक्टिवली फोर्स को कहाँ पे रखेंगे, ऊपर से 2h/3 पे रखेंगे, राइट। तो इसलिए इफेक्टिव लाइन ऑफ पासिंग क्या होगी, 2h/3। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यू वुड हैव अंडरस्टूड कि ये लॉजिक जो हमने वहां पे सीखा है, इट इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट व्हिच कैन बी अप्लाइड इन मेनी क्वेश्चंस। आई विल गिव यू वन टीजर प्रॉब्लम व्हिच usually everybody will do by integration, but if you have understood this lambda naught x wala logic, then you can solve that without integration, my dear friends. You can solve that without integration, right? I hope you would have enjoyed today's video, but before I come to teaser, uh, let me share a very useful information with you guys, so please stay on. So guys, I want to tell you about Vedantu's Eklavya program. It's one of the finest program, I can guarantee that, right now running for the in the country for JEE Advanced. And what is the best part is that it's absolutely free of cost. But yes, in order to be eligible for it, in order to enroll in it, you have to clear an entrance test, or you have to get a certain cutoff percentile in JEE Mains, below which you will not be enrolled in that batch. There is absolutely no way that you can get enrolled in this batch by paying some fees or something like that. It's totally free of cost, but absolutely for eligible candidates. And trust me, if you get enrolled in this, you would simply love the services that are offered. You can Google about this and you can ask your seniors who were part of earlier Eklavya. Their experience was simply absolutely brilliant. So I strongly advise you to research about this and give it a shot if you are a serious candidate of JEE Advanced. Next, this is the KVPY schedule. You can take a note of it. Um, you can save this URL in your computers because we from Vedantu we keep on
posting some useful informations which might be very very helpful for all of you who are serious about KVPY or JEE advanced exams, right? If you are a JEE 2022 candidate who is willing to give a serious attempt to JEE Advanced, then you can join this Telegram channel, and we keep on posting useful information on this channel, and that can surely help you out. If you are a 2023 candidate, then you can join this channel. If you are a 2024 candidate, then you can join this channel. Uh, this is a YouTube link again where we keep on posting useful information. So you can also save this link, wherein we will be telling about the new courses that we launch, and like some any useful thing that can help you in cracking the different exams like JEE or KPY. Now comes the teaser question of this month, for this week. This again can be solved by integration, but again I'm not interested in the integration method because that is of course like very straightforward procedural method. I would be more interested in minimizing the calculation without integration just by pure imagination. So let's see the question over here. Flat horizontal disk is given an angular velocity omega naught about its vertical axis passing through its center and is carefully placed on a rough horizontal surface. So basically, if you imagine that this is a rough horizontal surface, so basically there is a disk which is, suppose this is a disk. So I'm showing you the side view of the disk. So this is the axis, and the disk is rotating with angular velocity omega naught, right? So this is the angular velocity omega naught, and this disk is rotating like that. So if you see the top view of this disk. So this is the top view of the disk, and it will be rotating with angular velocity omega naught like this about its center. Okay, the surface is rough and it has a friction coefficient mu which is constant. It is, so because of this friction, the disk will stop rotating after some time because of the frictional forces. So you have to find that time t naught itself. You have to imagine that the weight of like the normal force will be uniformly spread over the disk, and using this logic you have to find the time after which this disk will be stopped. Again, this question, as I told you, can be solved without integration, but you have to think about the method uh, which does not involve integration. With integration, of course, many of you will be able to solve, but again, if you think carefully and try to apply the concepts that we have used in the that we have developed in this video, then you will be able to solve this without integrating this. Okay. Now, if you are able to solve this without integration, then please, I would love to hear from you. You can send your solution to this email ID with the subject line teaser solution and physics. And if I like your solution, then I will try to get back to you. So basically, I would love to hear from all of you who can solve this without integration. That's all from today. That's all from my side today, guys, and I hope you enjoyed today's session. I'll be bringing more such videos in the coming week. Thanks to you, all of you. Bye bye.